Hello friends, welcome you all in the channel of Law Wizard Guru. We have discussed this section 96 to section 100 of the Companies Act already. Today we have to discuss the section 104 regarding the chairman. So what section 104 says, friends? Section 104 is basically talk about the validly appointment of the chairman and who will be the chairman of the general meeting. So section 104 says the chairman of the board meeting will be the chairman of the general meeting. The chairman of the board meeting will be the chairman of the general meeting. जो आपकी जनरल बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन होगा वही जनरल मीटिंग का चेयरमैन होगा. बट आगे कहा गया है सेक्शन 104 के अंदर, बट if the chairman of board meeting is not presented within 15 minutes from the time appointed for holding the annual general meeting, and if he is presented within 15 minutes of the time appointed for holding the meeting but he does not wish to take the chairs, यदि वह 15 मिनट के अंदर नहीं आता है, जैसे कि जनरल मीटिंग के लिए समय निर्धारित किया गया था 9 AM मॉर्निंग में, और यदि वो 9:15 तक नहीं आता है या फिर वो 9:15 तक आ जाता है, टाइम अपॉइंटेड जो निर्धारित किया गया था उसके अंदर 15 मिनट्स के अंदर आ जाता है, फिर भी वह जनरल मीटिंग के अंदर चेयरमैन की पोस्ट को होल्ड करने के लिए सहमत नहीं है, किसी भी पर्सनल कारण से, किसी भी पर्सनल रीजन से ही इज नॉट विश टू टेक द चेयर, देन हु विल बी द चेयरमैन? So section 104 further says that the chairman will be appointed by the directors of the company. The chairman will be appointed by the directors of the company. How the director of the company will appoint the chairman? Directors will appoint the chairman one amongst themselves. Director will appoint the chairman one amongst themselves. But in case none of the director is presented within the 15 minutes for the time appointed for holding the meeting, or directors are appointed within the 15 minutes of the time appointed for holding the meeting, but none of the director is wished to take the chair of the chairman. Directors निर्धारित समय के अंदर नहीं आते हैं, या फिर डायरेक्टर निर्धारित किए गए समय से 15 मिनट के अंदर आ भी जाते हैं, पर उनमें से कोई भी डायरेक्टर चेयरमैन के पद को स्वीकार करना चाहता ही नहीं है, तो फिर चेयरमैन कैसे अपॉइंट होगा? देन सेक्शन 104 सेज in such a case chairman will be appointed as per the prescribed procedures given in the article. तो आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन खोलिए, उसके अंदर जो प्रोसीजर्स दिए हुए हैं या किसी व्यक्ति का नाम दिया गया है उसे ही चेयरमैन अपॉइंट कर दिया जाएगा, या प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर को फॉलो करते हुए चेयरमैन को अपॉइंट किया जाएगा. बट आप कहते हैं सर, इफ इन केस द आर्टिकल इज साइलेंट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द जनरल मीटिंग, देन व्हाट विल वी डू? सो फ्रेंड्स, द आंसर इज गिवन इटसेल्फ इन द सेक्शन 104. Section 104 further says that if the article of association is silent regarding the appointment or regarding the procedures to be appointed for the chairman, then members who are present in the general meetings, members भी तो जनरल मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, तो members who are presented in the general meetings will elect the chairmans amongst themselves by the show of hands. तो सदस्य अपनों में से ही किसी व्यक्ति को चेयरमैन के रूप में नियुक्त कर लेंगे शो ऑफ हैंड्स के माध्यम से, शो ऑफ हैंड के माध्यम से वोटिंग करते हुए. तो ये सारी बात की गई है सेक्शन 104 के अंदर रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन. नाउ आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन, एनी मेंबर्स हैविंग एनी ऑब्जेक्शंस, any person presented in the meetings having any objection regarding the appointment of the chairman, then such members may call for voting through the poll. किसी भी व्यक्ति को यदि इस नियुक्ति पर किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन है तो वो पोल की डिमांड कर सकता है. बट पोल के लिए एलिजिबिलिटी है सर, हर कोई पोल की डिमांड नहीं कर सकता. सेक्शन 109 पोल के रिगार्ड्स में बात करता है कि
पोल केवल दो व्यक्तियों के द्वारा, दो तरह के कैटेगरी ऑफ पर्सन के द्वारा ही डिमांड की जा सकती है। चेयरमैन खुद चाहे तो पोल की डिमांड कर सकता है, चेयरमैन में ऑन हिज सो मोटो कॉल फॉर द पोल, है ना। देन और कौन पोल की डिमांड कर सकता है सर? मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, members who are holding 1/10 of the paid up share capital, either he is a single member or either he is a B C D, more than the one members who are aggregating 1/10 holding of the paid up share capital in the company. Or voting power. Voting power, why we say voting power? Because in the guarantee company there is no share capital, so members who are holding 1/10 of the voting power may also call the poll. अब देखिए दोस्तों, पोल के अंदर क्या होता है, जिसके पास जितने नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं उसका वोटिंग परसेंटेज भी उतना ज़्यादा होता है। तो इसके थ्रू पोल के माध्यम से अब दोबारा वोटिंग की जा सकती है, और यदि वैलिड पोल की डिमांड की गई है 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल या वोटिंग पावर होल्ड करने वाले मेंबर्स के द्वारा या फिर चेयरमैन के द्वारा स्वयं पोल की डिमांड की गई है, और पोल के द्वारा जब वोटिंग हुई उसके बाद यदि चेयरमैन किसी अन्य व्यक्ति, यदि मेंबर्स किसी अन्य व्यक्ति को या पोल डिमांड करने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को चेयरमैन अपॉइंट करना चाहते हैं और पोल के माध्यम से वोटिंग मेजोरिटी में पास हो गई और किसी अन्य व्यक्ति को चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए सहमति हो गई मीटिंग के अंदर, तो ऐसी दशा में दोस्तों अदर पर्सन जो पोल के द्वारा जीता है उसे चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ये सारी बातें हुई सेक्शन 104 के रिगार्ड्स में। तो दोस्तों, आपको क्या इश्यूज हैं, क्या डाउट्स हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लिए रिगार्डिंग सेक्शन 104। तो आज के लिए इतना ही। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।